everything has got positive side of it. Just it is about our mindset कि हम क्या देखना पसंद करते हैं. की होल व्यू है, आप झांक के देख रहे हो, आपको बहुत छोटा दिख, आप वो छोटे से की होल व्यू से अपना ओपिनियन बना लेते हो और आपको पता नहीं होता कि पिक्चर एकदम और भी बड़ी है. एकदम बराबर. मेरी कंपनी पहले 2 साल में 3 बार बंद करनी पड़े बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट. शुड आई फोकस माय एनर्जी इनटू कि उन्होंने चेक लिया, या शुड आई फोकस माय एनर्जी कि नहीं यार दिया, यार मेरा काम चल गया और कंपनी अभी जो 3.5 लाख से चालू किया अभी 850 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंच गई. दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड वेयर आई हैव अ मेल गेस्ट, मिस्टर इलेश खक्कर. Welcome to yet another episode of Off Script by Dr. Meghna Gupta, and this is my first episode where I have a male guest, Mr. Ilesh Khakkar. Thank you so much for accepting this. Thank you so much. Thank you so much for having me here. और ये पहले ही सेंटेंस से प्रेशर और बढ़ गया. अरे बाप रे. फर्स्ट मेल गेस्ट. नहीं आपको प्रेशर नहीं लेना है. This is something which is close to our heart, and you are such a great public speaker. Like the way you talk, I think most of the dermatologists in this country know you. No, I don't have to give that introduction. So I was so looking forward. I'm so happy that you are the first as a male guest to inspire others. He's an entrepreneur, a keynote speaker, marketing expert, and John Maxwell Team certified trainer. He is the creator and developer of the famous practice booster workshop Dermapreneur, which was conceptualized with a vision to help dermatologists scale up their practice. Though he did not come from riches, he built a successful business right from scratch through his passion. In his 30 years of expertise as a pharmaceutical owner working in the dermatology industry, he was observed and connected with thousands of dermatologists who are also experts in their field. He analyzed the nuances of a dermatology practice like no one else and coached hundreds of dermatologists to help them build a thriving practice. He is even renowned and revered for his values, leadership, coaching and marketing abilities by the most influential personalities of the dermatology industry. Thank you so much. अगर मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलूँ इलेश, आप मुझे बताइए, फार्मास्यूटिकल 30 years ओनर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल इज नॉट ईजी एंड टुडेज वर्ल्ड हाईली कॉम्पिटिटिव. Where did this concept come from and how are you carrying on? I would not glorify my story. वो ऐसा है कि जो बोलते हैं ना कि बाबा बने तो फिर हिंदी तो बोलना पड़ेगा, वो टाइप का है. See, I was serving for somebody else. For 10 years I served in somebody else company. और I was about to get terminated from that company. वरना बिलीव मी, पे चेक का सिक्योरिटी छोड़ना इजी बात नहीं है. तो वहाँ पे टर्मिनेशन के अर्ज पे था तो ये कंपनी का जन्म हुआ. एंड टुडे इज 23rd एनिवर्सरी ऑफ यूबिक सॉल्यूशंस. 23rd एनिवर्सरी. Congratulations. 23 years of Ubique Solutions. That's an तो achievement. हाँ, तो वो बोलते ना कि वहाँ पे टर्मिनेशन के अर्ज पे था. फिर सोचा अभी क्या करो, तो दोस्त था बोले इलेश तुम वो सारी चीज़ें करते हो कि अगर आप कंपनी के ओनर होते तो जो करते हो सारी चीज़ें करते हो. सो रादर देन स्विचिंग ओवर द जॉब, व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन कंपनी. अभी बापू के पास तो सिर्फ 3.5 लाख रुपए थे तभी, जो मतलब सैलरी की कमाई से तो क्या इकट्ठा हो सकता है. 3.5 लाख थे, तो 3.5 लाख में से मैं बोला कैसे फार्मा कंपनी चालू कर सकते हैं. डोंट वरी, मैं बैठा हूँ ना. तो मैं बैठा हूँ, बहुत हिम्मत दे दी और किया. तो फिर आई वुड से मतलब पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर उन्होंने बोला मैं बैठा हूँ और उससे आपको हिम्मत आई, क्या आप इसको अग्री करेंगे कि उनके बोलने से ही कि मैं बैठा हूँ? हाँ, नो, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 13 years old. So it was spoken by my friend. हाँ, मेरे फादर जो है when I was 13, no that's fine. When I was 13 years old I lost my father. So that is. So your friend is one who gave you the entire True. encouragement. So a friend in need is a friend indeed. आप कहेंगे मतलब हमेशा पैसे से हेल्प नहीं होती है, कई बार लोगों के जरा से एक मॉरल सपोर्ट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है. शायद आप उसी पे काम करते हैं. आप ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आपने मॉरल सपोर्ट ना दी अगर उसने मांगी है तो, या बिना मांगे भी देते हैं. नहीं, एक्चुअली वो तो मेरे लाइफ का मंत्र है कि प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट, क्रिएट वाव फॉर ऑल द पीपल. एंटायर मतलब एक ही चीज़, सुबह उठता हूँ तो वही देखता हूँ कि भाई आज मैं किन किन की ज़िंदगी के ऊपर वो इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ. कहीं पर भी बहुत सारे फोन्स आते हैं, तो वही लाइफ मंत्र है कि भाई बिकॉज आई वॉज देयर इन हीज और हर लाइफ टुडे, उसमें एक बदलाव या चेंज, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए. इलेश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कुछ घटना घटी जिसने आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट जो आपने अभी जॉब का बताया, इसके अलावा जिसने आपको 360 डिग्री
बिल्कुल चेंज कर दिया हो? बहुत ना, बहुत लाइक अगर शादी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैरिज की बात करें तो मेरा मैरिज जो हुआ वो भी वो 360 डिग्री चेंज ही था। मतलब कि इट वाज अ लव मैरिज। नाउ इमेजिन लव मैरिज बिफोर 33 ईयर्स 34 ईयर्स बैक, तभी तो उसको मतलब इतना एक्सेप्टेंस नहीं था। तो वही हफ्ते 10 दिन की दोस्ती में 15 दिन की दोस्ती में फिर मैरिज कर लिया, तो वो 360 डिग्री था। तो मतलब बहुत सारे वाक़ये ऐसे जॉब से इसमें आया वो तो एक है ही, लेकिन कंपनी चालू करने के बाद में पहले 2 साल में मुझे कंपनी बंद करनी पड़े, ऐसे 3 अकरेंसेस बड़े हादसे हुए कि इस लगे वापस मुझे जॉब मतलब थैला उठा के एमआर की जॉब वापस करनी पड़ेगी। ऐसे 3 हादसे ऐसे बड़े बड़े हुए कि जिसमें मतलब फिर उस टाइम कि कल का 6,000 का चेक क्लियर करने के लिए 1,500 कम पड़ रहे हैं, तो मुझे रोज देखना है कि भाई आज 1,500 में किससे बोरो करूं। वाओ। एंड पीपल, आई हैव मेट पीपल कि वो मेरा फोन रिसीव नहीं करते थे कि वो पैसे उसको चाहिए रहेंगे। तो दोज लाइफ आल्सो आई हैव इसमें सीन। एक बात तो I have पापा seen- ने एक चीज सिखाई इसमें, हाँ। पता है, जो आपके बातों से मुझे लग रहा है, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये क्या आप अपनी जिंदगी में इस बात को बोल सकते हैं कि जो ऊपर चढ़ा है उसको लोग सलाम करते हैं, जो लगता है डाउन ट्रॉडन है, हमारा अपॉर्चुनिस्ट है नहीं, पर लोग उसे परसीव करते हैं, क्या लोग उसको अवॉइड करते हैं? हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, क्योंकि स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड आई कैन से कि अभी पोस्ट कोविड में ना ह्यूमैनिटी बहुत आई है लोगों में। लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को मतलब वो लाइफ टूवर्ड्स लाइफ जो उसका पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज हुआ है, तो उससे वो काफ़ी चीज़ें फ़र्क आई है, लेकिन अदरवाइज दैट इज़ ट्रू। इलेश, मुझे नहीं लगता आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोल सकते हो, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव पर्सन हो, मतलब सिर से लेके पांव तक पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है कि अगर मैं किसी की बुराई भी करने को बोलूँ तो आपके मुंह से निकलेगी नहीं। नहीं, वो है ऐसा बात कि वो कभी मैं कोई हिसाब से बोलता नहीं और देखता भी नहीं। मतलब पॉजिटिविटी का भी एक अलग साइड होता है ना। लेट अस टेक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है ना, आपने मुझे कुछ अवॉइड किया, राइट, सो आई नीड टू सी दैट ऑल्सो कि उसमें आपकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना तो आप अवॉइड। मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फ़ोन किया कि आई नीड योर हेल्प फॉर दिस थिंग, टुमारो मॉर्निंग आई विल कॉल यू, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो आपकी मजबूरी रही होगी कुछ ना कुछ। आपको ऐसा लग रहा कि इलेश को मैं ना कैसे बोलूँ इस चीज़ के बारे में, तो आई नीड टू थिंक दैट ऑल्सो। और दूसरी बात, आपने जब वो ना बोली तभी मुझे दूसरा रास्ता समझ में आया। अब बात है इलेश, मतलब आपने मेरा दिल जीत लिया, माय गुडनेस। अगर वो आपने ना ही नहीं बोली है तो वो दूसरा रास्ता मिलता ही नहीं। तो एवरीथिंग हैज गॉट पॉजिटिव साइड ऑफ इट, जस्ट इट इज अबाउट आवर माइंडसेट कि हम क्या देखना पसंद करते हैं। सही, मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मैं जो कई बार सबको समझाती हूँ कि एक की होल व्यू है। आप झांक के देख रहे हो, आपको बहुत छोटा दिख रहा है, आपको पूरा रूम तो दिखना नहीं है, आप वो छोटे से की होल व्यू से अपना ओपिनियन बना लेते हो और आपको पता नहीं होता कि पिक्चर मेरे दोस्त और भी बड़ी है। एकदम बराबर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी पहले 2 साल में 3 बार बंद करनी पड़े बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। तभी एक दोस्त, डर्मेटोलॉजिस्ट दोस्त, उन्होंने मुझे मनी लैंड किया। अभी आप समझो, अभी तो स्टार्टअप फंडिंग फंड रेजिंग वगैरह बहुत कुछ है, तभी ऐसा कुछ नहीं था, राइट। और तभी आपकी कंपनी चालू की, आपने जुम्मा चुम्मा 6-12 महीने किए, और किसी के भी पास आप बोरो करने के लिए जाओ ना तो मुंह फेर लेते, क्यों? और उसमें उसकी गलती नहीं है, आप समझो, क्योंकि वो चलेगा नहीं चलेगा, पैसे वापस आएंगे, राइट। तभी एक फ्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे पैसे लैंड किए, उन्होंने नहीं किए, उनके दोस्त से, और एक चेक टूवर्ड्स चेक, उसने एक सिक्योरिटी चेक लिया, ठीक है ना। तो एक दूसरे दोस्त ने बोला कि देख लेस, इतने सालों का संबंध, उसने चेक लिया, इतना भरोसा नहीं है कि ये इतना लाख रुपया तो वापस आपका आ ही जाएगा। मतलब तुम ये मत देखो, तुम ये देखो दिए तो सही। वो चाहे तो वो भी बोल सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, सॉरी, राइट, सॉरी, मैं चाहता तो हेल्प कर सकता लेकिन नहीं है इलेश भाई, तो मैं क्या करूं, दिए तो सही। तो शुड आई फोकस माय एनर्जी इनटू कि उन्होंने चेक लिया, या शुड आई फोकस माय एनर्जी कि नहीं यार दिया, यार मेरा काम चल गया, और कंपनी अभी जो 3.5 लाख से चालू किया अभी 850 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंच गई, तो किसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। तो दैट इज पॉजिटिविटी। इलेश, इस पूरी जर्नी में आप कितने डर्मेटोलॉजिस्ट को जानते होगे ऑल ओवर द कंट्री? जानता तो बहुत लोगों को, मतलब यू कैन से अराउंड मोर देन 1500 to 2000 डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, लेकिन जो संबंध जिसको बोलते हैं
वो आप बोल सकते हो 100, 125, 150 से ज़्यादा, बिकॉज देर इज सर्वे, देर इज अ रिसर्च बीइंग डन कि ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन कीप क्लोज रिलेशनशिप विथ मैक्स टू मैक्स 150 पीपल। आई एग्री टोटली। क्योंकि फिर वो बैंडविड्थ खत्म हो जाती है। True. फिर क्या आता है, से फॉर एग्जांपल मेरे साथ में निकेत है, प्रमोद है, तो फिर उसका जो ऑर्बिट है ना वो चालू होता है कि वो और 150 डर्मेटोलॉजिस्ट को, फिर एरिया मैनेजर है वो और 150, ऐसे तो लोग ऐसा, जुड़ते हैं। हाँ तो ऐसे लोग जुड़ते हैं। लेकिन मेरे डायरेक्ट टच में बोले तो 100, 150 से ज़्यादा वही हिसाब से नहीं। और आप इतने कॉन्फिडेंट, आपको कभी नहीं लगा मैं इतने डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैंने मेडिसिन क्यों नहीं करी? कभी आपके दिमाग में आया कि काश मैंने MBBS MD करी होती? नहीं नहीं नहीं, फ्रेंकली नहीं आया ना कभी? नहीं। सी फ्रेंकली बताऊं तो मैं पहले से आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम नॉट इवन फार्मासिस्ट। तो ये बिजनेस या फार्मा कंपनी का ओनर वो एक्सीडेंटल है। सिंपल सी बात, हाउ आई स्टार्टेड माय करियर, मैंने जैसे बोला लव मैरिज हुआ मेरे, तभी हुआ जब मैं स्टडी कर रहा था। आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन BCom में, ठीक है ना, तभी मैरिज हुआ। मैरिज खत्म करने के मतलब मैरिज होने के बाद में काम ग्रेजुएशन करना खत्म पड़ेगा। किया और इमीडिएटली जो पहली जॉब मिली वो एक्सेप्ट की। फॉर्चुनेटली वो पहली जॉब एक राजकोट की लोकल फार्मा कंपनी में थी, तो वहाँ से अपना गाड़ी चल पड़ी, दैट्स ऑल। अदरवाइज ये कोई प्लानिंग, मैं अगेन प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बोला हूँ कि कोई ग्लोरीफाई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन ही है कि मतलब लास्ट टाइम तो पॉडकास्टर बोल रहे थे कि आप इतना सच कैसे बोल रहे लेते हो, मतलब वो वही चीज़ है, वही जबान से निकलता, कोई उसको ग्लोरीफाई या PR वर्क में वो नहीं निकलता। आप देखिए आप कितने लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, ऐसे कितने सारे यंगस्टर्स होंगे जो एंटरप्रेन्योर तभी रेजोनेट करते हैं ना। सी वाई पीपल लिसन टू मी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि ये जो बोलता ना वो सही, जो जेन्युइन करता वही बोलता है, तभी वो कनेक्शन बनता है। अदरवाइज सब चीज़ें मैं ग्लोरीफाई वे में करूँगा तो कनेक्टिविटी छूट जाएगी। और आपको रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कहाँ से डेवलप हुई? आप क्या क्या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी? वो उसके बारे में बोले तो देखो, वो तो थोड़ा गुजरात की मिट्टी में ही कुछ ना कुछ तो है। वहीं आ रही थी गुजराती, मैं गुजरात में पढ़ी हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। आप देखो तो गुजरात की मिट्टी में, आप देखो तो गुजरात में गरबा खेलते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। अगर आप वो भी सर्वे निकालो तो गुजरात में जॉइंट फैमिलीज आर मोर देन इन एनी अदर स्टेट ऑफ द इंडिया। तो वो जो न्यूक्लियस फैमिली जो बोलते हैं ना, उसके ज़्यादा जॉइंट फैमिली रहते हैं। तो वो मिट्टी में वो है कि भाई नहीं, वो वही हिसाब से डायनेमिज्म वगैरह रहते हैं। उसका एक माइनस पॉइंट और बताऊं, गुजरात में हमको टीम को रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसे? 3-4 साल MR का जॉब किया तो लगता है चलो अभी मैं भी अपना कंपनी डाल देता हूँ। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक तो गुजरात की मिट्टी, दूसरा मैं जो कास्ट को बिलोंग करता हूँ ना, लोहाना बोलते हैं उसको, तो वो कास्ट में पहले से ही वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ना वो जज्बा पहले से रहता है कि बिजनेस करना है। भले ही मैं महीने का मतलब जॉब में मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूँ, धंधा करके 15,000 कमाऊंगा, लेकिन वो मुझे धंधा करना है। वो पहले से वो लोहाना कम्युनिटी आप गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा। पर अब मैं आपको एक रिसेंट चीज बोलूं, जैसे मेरी बेटी जेंजी है, जितने यंगस्टर्स है ना, इनको अल्टीमेटली इनसे पूछो, जैसे हमें हमारी जनरेशन से डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, IAS, इनको एंटरप्रेन्योर्स बनना है, इन सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मतलब ये आप तो मतलब पहले से सोच रहे हो, बट अब नहीं तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो ये जो है ना एक नैरेटिव सेट किया गया, खास करके डॉक्टर्स में, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, लेकिन खास करके डॉक्टर्स में, कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज समथिंग बैड थिंग। वो पैसे, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं? वो इसलिए कि वो पहले से वो नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है। आप समझो ये जो नैरेटिव है ना, वो कैसे जाता है मालूम है? कि एंटरप्रेन्योर्स बनते पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, श्रूड, हाँ, श्रूड, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अगर मैं वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा हूँ किसी की लाइफ में, पैसे कहाँ से बनेंगे? सही कह रहे हैं। बनेंगे ही नहीं। लाइक लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डर्मापिनर, ठीक है? डर्मापिनर में मान लो 150-200 डॉक्टर्स, आप समझो डॉक्टर के दिल में पेशेंट जो है ना वो भगवान के जैसे होता है। तो 3 दिन अपना OPD बंद करके 1.5 लाख रुपया मुझे दे के सुनने के लिए आते हैं। तो अगर वो वैल्यू क्रिएशन नहीं है तो थोड़ी आएंगे। नहीं इलेश, आपके लेक्चर्स मैंने भी सुने, आप मतलब जितना हम लेने आते हैं आप उससे 100 गुना ज्यादा देते हो। और ये तो इज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो दैट अप्लाइज द सेम थिंग। तभी तो वो रहेगा ना कि वो वैल्यू क्रिएशन नहीं है तो नो एंटरप्रेन्योर कैन स्केल अप और सस्टेन। एब्सोल्युटली। यहाँ से मैं पूछूंगी डर्माप्रेन्योर, थोड़ा सा आप उसकी डिटेल्स बताएंगे। हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट कम इन योर माइंड? हाउ डिड डॉक्टर्स
एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमें मेडिकल कॉलेज में कोई प्रैक्टिस मैनेजमेंट नहीं सिखाता है। स्विमिंग पूल में कूद जाओ, जितनी स्विमिंग आती करो, नहीं आती तो डूब जाओ, यू नो। बट ये आपको कैसे कॉन्सेप्ट आया थोड़ा इसमें ना 2-3 लेयर्स है मैम। एक मैं आपको बताऊं कि मुझे जो है ना रीडिंग का बहुत शौक है, लर्निंग का बहुत शौक है। आई इन्वेस्ट अराउंड 50 lakhs रुपीज़ पर एनम ऑन माई सेल्फ लर्निंग, 50 lakhs रुपीज़। और जब भी मैं 50 lakhs रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट प्रोक्योरिंग द थिंग। प्रोक्योरिंग ले लिया, चलो 2000 बुक्स की लाइब्रेरी है, इतने कोर्सेज ले लिए, इतने कॉन्फ्रेंसेस किए, वो नहीं। वो एम्बेड हुआ, आइडियाज़ में कन्वर्जन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ। मैं वो लर्निंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 50 लाख दिया, खर्चा किया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। तो वो चीज़ एक लर्निंग वाला लेयर है। वो लर्निंग वाला लेयर ना, तो जैसे ही मैं ये कंपनी जैसे ग्रो कर रही थी ना, मुझे ये समझ में आ रहा था कि डॉक्टर्स हैव नेवर बीन ट्रेन्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग एंड सो मेनी डे टू डे लाइफ चैलेंजेस। तो उसमें मैं जो मतलब लोकल मेरे गुजरात के मान लो से फॉर एग्जांपल, और राजकोट के जो फ्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको हेल्प कर रहा था कि सर इसको अपन ऐसे स्केल कर सकते हैं, इसको ऐसे सिस्टम बना सकते हैं, ये प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, इंटरव्यू ऐसे लेना चाहिए वगैरह, राइट। तो वो मैं करता था। वो करीबन 8 से 10 साल तक मैंने वो किया। लेश मैं यहाँ रोकूंगी आप, पर आप इतना सेल्फलेसली क्यों करते हो उसको फिर? Why haven't you made that an entrepreneur mode? No, actually देखो लोग ना, जैसे आपने कहा 100 लोग करीब हैं फर्स्ट तक, वो आपको डाउट नहीं करेंगे। उसके आगे आगे लोगों को लगेगा इसको मिल क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है ये सब। हाँ तो है ना, आपके दिल्ली की एक कलेक्ट डॉक्टर है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बोलता है वो हमेशा कि इलेस ये कर क्यों रहा है, उसमें उसको फायदा क्या, उसको क्यों मिलता है, क्या मिलता है। सी हियर कम्स माई नेचर। आई एम ए वेरी फर्म बिलीवर इन लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। देयर लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। सिंपल, एक चीज मैंने आपके लिए कुछ भी किया ना, इट इज गॉड गिवन नेचर टू ऑल द पीपल। उतना या उससे ज्यादा आप जब तक रिटर्न नहीं करते हो ना, आपको नींद नहीं आएगी। आप देख के चलो, कभी भी कुछ भी फेवर, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, नो, नॉट मटेरियलिस्टिक, कुछ भी। से फॉर एग्जांपल, कल को आपको कुछ एडवाइस चाहिए, आपने मुझे फोन किया, मैंने आपको एडवाइस दिया ना, तो वो आपके दिल में वो रहेगा जब तक वो फेवर आप रिटर्न नहीं करते हो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। नीलेश, पर हर कोई ऐसे देखो, कुछ मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगी। कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में वो घर हो जाता है, पता होता है, कैलकुलेशन चल रही होती है, भाई इसने मुझे हेल्प करी, चाहे मैं तन मन धन 3 चीज़ों से आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, किसी न किसी एक से रिजल्ट। हर इंसान आजकल ना बहुत अपॉर्चुनिस्ट पे होते हैं नीलेश, जो उनको वो लेते रहते हैं, उनको पड़ी नहीं। सही बात है, सही बात है ना। उसको कैसे ओवरकम करते हो फीलिंग्स? अगेन वी स्टार्टेड विद डर्मापिनर, वहाँ पे वापस जाएंगे, लेकिन पहले आपका ये सवाल का जवाब दे दूँ। वो ऐसा है कि इफ़ यू ट्रस्ट पीपल, if you do good thing from bottom of your heart, 97% of people in the world are good people. अभी वो आपको देखना है कि वो 3% जो कनिंग है उसके ऊपर आपका फोकस हो, सो दैट 97 को भी आप कुछ नहीं दे कि भाई ये भी ऐसा है, ये भी बदमाश है, ये भी मेरा फायदा उठाएगा, या फिर आप 97% जो गुड पीपल है उसके ऊपर फोकस करो। माय गुडनेस नीलेश, मैं तो आज और बड़ी फैन हो गई। थैंक यू। अच्छा, ये 97% का भी एक बात बताऊं आपको, बताइए। लोगों का नजरिया क्यों चेंज हो जाता है। 3% लोग बुरे, मान लो बुरे नहीं, लेकिन उसकी हालत जो भी बोल लो, लेकिन आप समझो व्हाट इफ आपने कुछ अच्छा ही करना चालू किया, ठीक है, लेकिन 3% वो पहले ही आपको मिल गया, वो भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता तो है। फिर वो आपका देखने का नजरिया 97 के प्रति कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो दैट आल्सो यू नीड टू कीप इन। यही प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। तो जो जिसका नजरिया चेंज है ना, उसका भी ऐसा नहीं कि वो लोग बराबर उसको बिलीव नहीं करते, लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस से वो चीज़ें आती है। अच्छा, वापस जाते हैं डर्मापिनर में, तो वो मैं डॉक्टर को ऑन ए 1-to-1 बेसिस काउंसलिंग वगैरह सब कंसल्टिंग वगैरह दे रहा था, ठीक है ना। फिर मुझे समझ में आया कि भाई इसको अगर मैं स्केल नहीं करूँगा तो मेरे जो विसिनिटी में है 10-15 डॉक्टर, उसको ही बेनिफिट मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। Put it in one line, you wanted to touch more lives. हाँ, एंड देन आई अडॉप्टेड दैट 1-to-many मॉडल। अभी जब ये डर्मापिनर मैंने चालू किया ना, वुड यू बिलीव दैट माय टीम, कोर टीम वेयर अगेंस्ट मी। ये आदमी पागल हो गया। तभी फर्स्ट डर्मापिनर का चार्ज था 75,000 रुपीज। तो सही में एक बंदे ने तो बोला, सर आपको लगता है कि डॉक्टर 75,000 दे के आपको सुनने के लिए आएंगे? मुझे नहीं लगता है।
पर वो 75,000 आप कमा तो ना रहे हो, आप 2 दिन का वो stay बराबर लेते है। हो, 4 मील्स होती हैं, आना जाना, अगर कहीं शादी में भी जाओ, मतलब कोई भी पर पर्सन। रादर मैं तो गवा रहा हूँ। लास्ट डर्मा अपने जो 25 में किया था ना, आई लॉस्ट 28 लाख रुपीज इन दैट। Oh my God. लेकिन जो अटेंडी नहीं है उसको मालूम ही नहीं है कि उसको तो लगा 1.5 लाख रुपया। आज की तारीख में कोई भी कॉन्फ्रेंस ले लो, 30,000 40,000 का रजिस्ट्रेशन होता है, 50,000 का होता है मैक्स टू मैक्स, बराबर है। अरे पर उसमें टू एंड फ्रो उसको ऐड करो ना, स्टे, आप रूम्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, फिर भी तो वो समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या क्या। और पूरा एक्सपीरियंस जो है वो 3 महीने का एक्सपीरियंस रहता है। जनवरी का डर्मा पिनर, उसका एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा अगस्त लास्ट वीक और वही ना, सितंबर इतनी फर्स्ट मैं वीक देखा है में। कितनी मेहनत पूरी टीम की। अब ये पूरी टीम ऐसे काम करती है जैसे ना वो पपेटे नहीं होता, कोई ऊपर बैठा है और पपेट्स को चला रहा है, जो कि कोई बैठा नहीं है ऊपर, क्योंकि आप तो टॉक दे रहे हो कंटिन्यूअसली, बराबर आप है। कोई इंस्ट्रक्शंस तो इमीडिएटली साइमल्टेनियसली दे नहीं पा रहे हो, पर लिटरली देखने में ऐसा लगता है जैसे जैसे पपेट्स चल रही हैं और सही कोई है। पपेटियर बैठा है जो नचा रहा है। मतलब ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। इलेश, एज वी प्रोग्रेस कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, बट आई थिंक किसी भी पॉडकास्ट और इंटरव्यू या कैजुअल टॉक्स में रैपिड फायर राउंड ना बड़ा पॉपुलर होता है। जरूरी नहीं है कि आई आप होप इट इज नॉट लाइक करण जौहर। ना 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 Copy with Karan. Okay. आप चाहें तो एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, सेंटेंसेस में भी दे सकते थैंक यू। हैं। मेरा प्रेस मायोपिया, चश्मा पढ़ने वाला। ओके, वन वर्ड योर टीम वुड लाइक टू डिस्क्राइब यू एज। I have only given them, what is that? Caring Hitler. Sorry, 2 words है। Caring Hitler. नाइस। हिटलर भी हूँ। हाँ, हिटलर भी हूँ, केयरिंग भी हूँ। नाइस। कॉफी और चाय ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। Nothing. नो एडिक्शन, नो कॉफी, नो Never. चाय, नो Never. अल्कोहल। नींबू पानी तो चलता होगा, वो भी नहीं। हाँ, वो पीता हूँ कभी भी। तो क्वेश्चन गलत है। वन बुक दैट चेंज्ड योर थिंकिंग। Think and grow rich. नाइस। वैसे बहुत सारी है, लाइक डिलीवरिंग हैप्पीनेस, दैट इज बाय Zappos फाउंडर। हाउ टू बिल्ड टीम, हाउ टू डेवलप कल्चर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। देन 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की बुक है। मतलब नंबर्स ऑफ बुक, डिफरेंट थिंग्स। योर हिडन टैलेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू डू। डेवलप रिलेशनशिप। नाइस, वेरी नाइस। इफ यू वर टू चूज बिटवीन ग्रोथ और पीस, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? एट माई स्टेज ऑलवेज पीस। और ग्रो तो आप ही कर रहे हो अच्छे से, लोगों को भी ग्रो करा रहे हो, बट यू चूज पीस, व्हाई? See, ultimate goal of any human being is happiness. ट्रू। आप मटेरियलिस्टिक कितना भी ग्रो कर लो, लेकिन वो एंड गोल तो वही। से फॉर एग्जाम्पल मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे यूएस से जाना है, वो जाके चाहिए क्या? हैप्पीनेस। मुझे ई क्लास लेनी है, एस क्लास लेनी है, चाहिए क्या? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डायरेक्टली नहीं, मान लो स्टेटस अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, लेकिन एंड गोल हैप्पीनेस। इलेश, इधर मैं एक चीज़ पूछूंगी। मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, आई फाइंड लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हैप्पीनेस फॉर मी इज अ लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ बीइंग। प्लेजर इज समथिंग, मैंने आइसक्रीम खाई, मैं खुश हो गई, खुश, प्लेजर। So in a way you can say that dopamine is pleasure. यस, Instant gratification is pleasure. pleasure. And whatever gives you materialistically, that is pleasure. Happiness comes from within. विद इन, So there is a difference. इट्स कम्स फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ माइंड। तो कई बार एस क्लास लेके भी हैप्पीनेस नहीं आती है। Rather, I would say, the richer you become, the costlier your happiness become. एब्सोल्युटली, सो वेल सेड। आज की तारीख में मुझे याद है, मैंने जब भी मैरिज किया ना, 2 साल तक हम लोग हनीमून में नहीं जा पाए थे क्योंकि पैसे नहीं थे। 2 साल के बाद में मैं और भाई ने जब भी हनीमून में गए, तभी माउंट आबू और उदयपुर और नाथद्वारा 6-7 दिन का टूर था। 3,500 रुपये में वो पूरा टूर निपट गया था 33 ईयर्स बैक। 60 रुपये का किराया था कमरे जो हम लोग रहे थे, लेकिन वो हैप्पीनेस आज 5 स्टार होटल के स्टे में नहीं मिल पाती। इधर से एक चीज़ पूछूंगी इलेश, तो आप ये कहेंगे क्या डिप्राइवेशन से ग्रोथ आती है? मैं अपने पापा से भी कई बार पूछती हूँ, मतलब जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ सफ़र किया, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, डिप्राइवेशन, क्या तब जैसे नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी कुशन जनरेशन है, हमारे बच्चे, तो हम उनको कुशन रखते हैं, तो क्या वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने वो डिप्राइवेशन ही नहीं देखी है? देखो, वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन डिप्रेशन से ग्रोथ आती है, लर्निंग मिलती है, वो भी उतना ही ट्रूथ है। से फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू अगेन, लगेगा कि वापस स्टोरी, वो जो पहले 2, 3, 4, 5 साल थे ना, उसमें इतना मनी क्राइसिस था कि एक बार तय किया कि यहाँ से मैं निकलूँगा
और निकलूंगा वो हिसाब से निकलूंगा कि लाइफ में मुझे बैंक बैलेंस कभी देखना नहीं पड़े। वो दिन और आज का दिन कभी भी मुझे बैंक में पैसे है कि नहीं वो देखना ही नहीं पड़ता। वी आर कैश रिच कंपनी, कैश रिजर्व कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर तो नेक्स्ट वहाँ से वो जनरेशन आता के है। लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? भाई वो लोग तो डिप्राइव ओके नहीं है, ओके गुड। उन्होंने देखा नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट उत्सव, माय सन, बराबर है। उसने वो मतलब मिडिल क्लास क्या होता है या फिर वो स्केर्सिटी क्या होती है देखा नहीं है, बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगा, राइट टू अंडरस्टैंड। हाँ, कभी ये हो सकता है कि मनी की वैल्यू जो है ना, जो आपने या मुझ में है, उसकी कंपैरेटिवली उसको मनी की वैल्यू कम समझ में आए, डिफरेंट समझ में आए, वो हो सकता है। लेकिन ग्रो नहीं करेगा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बिकॉज दैट अल्टीमेटली सो मेनी थिंग्स आर देयर, जेनेटिक्स, घर में माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, अपब्रिंगिंग क्या है, वैल्यूज, राइट। अभी मनी का बात करें, मान लो मनी की बात करें, तो मनी में भी वापस ही इज अ सक्सेसर, ओके। सो उत्सव, तो वहां पे भी उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार बापा ने सब किया हुआ है, अभी तो तैयार गद्दी पे बैठा है, वो नहीं है। वो जो है ना, वो नैरेटिव ऐसा है कि जो रॉन्ग है। लाइक अगर मान लो एक टीम का इश्यू है, ठीक है ना, आप भाविनी को पूछो, मुझे पूछो, उत्सव को पूछो कि इसमें कैसे डील करना चाहिए, तीनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ओवर डिनर टेबल बातें होती रहती है, सोच वो हिसाब से बनी रहती है, एनवायरनमेंट वो हिसाब से है। तो वो जो रॉन्ग नैरेटिव है ना कि पापा ने सब बनाया, अभी तो तैयार गद्दी पे बैठ रहा है, वो नहीं है। वो पापा ने जो बनाया ना, उसके साथ में उत्सव का अपब्रिंगिंग, उसका कल्चर, वो सभी उसमें आया ही है। तो वो नैरेटिव रॉन्ग है। अच्छा, एक और नैरेटिव रॉन्ग आपके ऑडियंस को पसंद आएगा। बहुत लोग बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल, कि भाई सक्सेसफुल आदमी का बेटा उससे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकता। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। तो आप धीरू भाई और मुकेश भाई को भूल जाते हो। हाँ, देखो, There are plenty of examples. एब्सोल्युटली, तो अगेन वहीं पे आया कि यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है, राइट। वेरी वेल सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन और डूइंग इट योरसेल्फ? 100% delegation. Unless it is, like conflicting with the major decision, fatal decision, then doing myself, otherwise 100% delegation. मेरे लिए ऐसा बोला जाता है, जो नॉन पीपल है, आप भी उनमें से हो, कि इलेस अगर इफ आई कैन हायर समबडी टू ब्रेथ ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई वुड हायर दैट पर्सन ऑल्सो, कि मेरी जगह पे आप श्वास लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। सो 100% डेलीगेशन। दैट्स अ नाइस थिंग। मीटिंग्स और व्हाट्सएप वॉइस नोट्स, क्योंकि आप बहुत व्हाट्सएप नोट्स भेजते हो। नो मीटिंग। तो ऑफिस में नियम है कि जो काम इंटरकॉम से हो सकता है ना, वो कभी भी या व्हाट्सएप से हो सकता है। वुड यू बिलीव, मेरी ऑफिस में किसी को मुझे मेरी चैम्बर में मिलने के लिए आता ना, फर्स्ट दे वुड सेंड मी व्हाट्सएप कि सर आई नीड योर 15 मिनट्स, शुड आई कम टू योर चैम्बर, प्लीज लेट मी नो व्हेन एवर। नो मीटिंग, व्हाट्सएप वो इज नॉट बेस्ट। इलेश, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, तो मेरा कोई भी पॉडकास्ट बिना स्किन केयर के अभी कंप्लीट नहीं होता। अभी नर्वसनेस आ रही ओह है। माय गॉड, भाई रुमाल मंगाओ, थोड़ा पसीना पोंछा जाए। नहीं, Yes. डू यू वेयर सनस्क्रीन एवरी डे? Frankly speaking, no. Oh my God, that's a bold acceptance on the live show that no. No, actually, I use only moisturizer, That is your Same- favorite skincare. shampoo and conditioner, nothing else. Shampoo, conditioner and moisturizer, nothing else. Maybe आप उसको मान लो कि सालों से वही आदत लगी है, जो भी, आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, बट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो सच आंसर है वही बताऊंगा। सही है। और फिर आप इतने सारे SKUs कैसे निकालते हो? आपके कितने SKUs होंगे डर्मेटोलॉजी मोर देन 250। माय गुडनेस, तो ये आप ही निकालते हो, फॉर्मुलेटर के साथ टीम है ना, बैठते हो? टीम है ना, टीम। टीम है। उनमें से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है आपके सारे प्रोडक्ट्स में से? मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मॉइस्चराइजर बोला, वो लिपिड्स, उसका आपको एक सिंपल ब्रीफ बताऊँ ना, तो आज से 8 साल पहले लिपिड्स का इतना सेल नहीं था, फ्रेंकली बताऊँ तो। टीम ने बोला, कंसर्न ने बोला इसको बंद करो। अभी मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, कैसे बंद करूँ? ठीक है, तो मैं बोला नहीं, इसको अच्छे से मार्केट करना पड़ेगा, इसको अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह सब करना पड़ेगा, साइंटिफिक सपोर्ट वगैरह पूरा चेंज किया, और अभी लिपिड्स बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो हिसाब से। सेकंड वन इज एथिग्लो। मेरा फेवरेट तो टैबलेट एथिग्लो है। मतलब मैं एक वो ग्लूटाथियोन है, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, Thank इसका you. रिजल्ट मेरे को कभी मोर देन 90% लोग जिसको लिखा है वो Thank you so रिपीट much. करते हैं। मतलब And really I would like to share one thing on that note. Do you know that Ethiglo brand is contributing more than 30% of total revenue?
Imagine 250 products. Ethiglow brand is contributing more than 30% of total revenue of the company. Nice. नहीं, glutathione आपका really में powerful है and it's a very good molecule Thank you. if used by right doctors in right hands and prescribed in right manner. True. Coming to this, हमारी country बहुत ज़्यादा fairness obsessed country है. Okay? तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हुए आप उस चीज़ का ध्यान रखते हो कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट ऐसा कुछ दूं जो लोगों फेयर बने? Now, I am completely against of that fairness. If you see me, I never apply any skin lightening thing. See, you can apply skin brightening thing for glow, but not for fairness. तो मैं हालांकि एथिग्लो में वो कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ along with my marketing team कि glow doesn't have any shade. Absolutely, I am loving this. Glow Thank doesn't you. have any shade. Shade. You need to be happy with your वो निखार आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स ना आप बात करो मैं 2 शेड फेयर हो जाऊंगा. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दैट. Thank you so much because this is what as dermatologists we believe, irrespective of what shade you are, skin should. और अभी तो व्यूअर देख रहे हैं ना मेरा. इलेश, आई वुड लाइक टू आस्क, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, मैं जितने साल से आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, वो बड़े कांस्टेंट हैं. आप कैसे रिटेंशन का क्या आपका मंत्र है वो आप शेयर करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एट्रिशन रेट रहे हैं, लोग छोड़ के जाते रहते हैं. उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ये या आप ऑब्जर्वेशन बोल दो या मेरी स्टाइल बोल दो कि हेल्प द अदर पर्सन बिकमिंग ए बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. हाउ कैन आई रिपीट इट? हेल्प द अदर पर्सन बिकमिंग बिकमिंग द द बेटर बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो उसको विथ फुल रिस्पेक्ट, फुल डिग्निटी. एक्चुअली क्या होता है मालूम है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स और जिसके साथ में मैं बात करता हूँ ना ये तो पैसों के लिए छोड़ के जाए. दैट हार्डली मैटर्स. जुड़ते हैं पैसों के लिए लेकिन टिकते हैं डिग्निटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए. वो फीलिंग उसको दो कि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिगर कॉज. से फॉर एग्जांपल आपके साथ में जो जुड़े सालों से मान लो उनसे आप बात करो तो वो भी बोलेंगे मेघना आप जो कर रहे हो डॉक्टर मेघना वो अपने को फुलफिलमेंट देता है. सो दैट इज द मेन थिंग. और एम्पावरमेंट. अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है कि एज ए बिजनेस ओनर अभी आप मानोगे कई जगह पे मुझसे ज़्यादा अच्छा रेपो निकेत और प्रमोद का है. नहीं, वंडरफुल पीपल. एंड दैट इज फाइन. तो उसमें मुझे इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए कि भाई डॉक्टर तो इनको पहचानते हैं मुझे कम पहचानते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. रादर आई एम्पावर देम कि वे डेवलप बेटर रेपो, डेवलप बेटर थिंग्स. अच्छा दूसरी बात, आर यू थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो? सो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप इज द मेन थिंग. पता है ये बात अगर 10% लोग भी अप्लाई करें ना अपनी जिंदगी में, दिस वर्ल्ड विल बिकम अ मच बेटर प्लेस टू लिव. थैंक यू. Thank you. This is very beautiful. Thank you, Ilesh, for bringing it to notice, and I hope that people get inspired by this. मैं दिल से बोलूँ ना तो मेरे पास एक शब्द में मैं नहीं इसको समराइज कर सकती कि इतना मज़ा आया. लगा ही नहीं कि हमारा कोई कैमरा चल रहा है और पॉडकास्ट शूट हो रहा है. थैंक यू सो मच इलेश फॉर एक्सेप्टिंग. लाइक शेयर. ओह नो आप मत बोलो. आज बोलने का मेरा दिन है. क्योंकि जब भी मुझे आपने इनवाइट किया ना मुझे आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो ये भी मैं ही बोलूंगा. प्लीज गो अहेड. If you have got value from this podcast, please do like, share, subscribe and comment which lessons you liked in the podcast of script by Dr. Meghna. Thank you all. Thank you.